Yes. Since it is Sunday today, how has your day been so far, ma'am? What all have you been doing? It's Yeah. sir. It has been good. Not anything special, but it's been good. Okay, so it was a routine day. Yes, sir. Okay, ma'am. So in today's session, I'll give you some sentences in Hindi and you have to translate them into English, right? So, I will try my best. Let's see. are you ready, ma'am? Actually, Yes, sir. I'll give you mixed sentences. Some of them will be conditional and some of them will be basic, simple sentences, right? Yes, sir. The first sentence is, ये काम तुम्हें खुद से करना होगा. How would you say this in English? This work you will have to do with by yourself. हाँ. This work you will have to do this work by yourself. Yeah, you said it perfectly. You'll have to do this work by yourself, or you can say you'll have to do this work on your own. By yourself, On your on your own, यानी अपने आप करना होगा. So you'll have to do this work on your own या by yourself. You can say either of them. ये तस्वीर पेंसिल से बनाई गई है. This picture was drawn with pencil. Very good. क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? Will you give me some time, or would you give me some time? Yeah, can you is more polite here. Can you give me some time? Can you give me some time? Yeah. However, your sentence was grammatically correct. अच्छा, Yes. कई बार हमको कहना है कुछ दोस्त हमेशा मददगार होते हैं, कुछ दोस्त हमेशा मदद करते हैं. A few friends are always helpful. Yeah, few friends are always helpful. Exactly. और बहुत से लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे. बहुत से लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे. हाँ हाँ. Many people will attend this session. डेफिनेटली. और मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. I don't need much time. तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो. Yes. You are making too much noise. राइट. मैं स्कूल सुबह 8 बजे पहुंचा. I reached school at 8 in the morning. करेक्ट. और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. This gift is for you. वो 2015 से यहाँ काम कर रहा है. He has been working here since 2015. और अगर वो 3 घंटे से काम कर रहा है. He has been working for 3 hours. ये भी ठीक है. हालातों के बावजूद उसने हार नहीं मानी. Despite the difficulties, he didn't give up. या परफेक्ट. या डिस्पाइट द डिफिकल्टीज कह सकते हैं, डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस भी कह सकते हैं. ही डिडंट गिव अप, यानी कि उसने हार नहीं मानी. ये किताब पढ़ने लायक है. This book is worth reading. या वर्थ का मतलब है किसी चीज के लायक है. सो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. यू सेड इट परफेक्टली. तो क्या ये फिल्म देखने लायक है? Is this movie worth watching? या करेक्ट. अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओगे. If you try, you will succeed. या यू विल सक्सीड. सक्सीड अपने आप में एक वर्ब है. सो इफ यू ट्राई. अगर कहें थोड़ा सा एक हिंदी वर्ड टू वर्ड अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखें, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी. If you try, you will be successful. यू विल बी सक्सेसफुल. यू विल गेट सक्सेस. तो वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन. गेट सक्सेस जो है वो अपने आप में एक नाउन के तरीके से यूज करते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा कमांड, यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड यू आर यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. सो अगर बारिश होती तो हम रुक जाते. If it had rained, we would have stopped here. या और अगर समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता. If I had time, I would go with you. ये भी ठीक है. और अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए होते. If you had told me, I would have given you money. I would have given you money. या आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब यहाँ दोनों चीजें लिटिल पास्ट में कह रहे हैं. माँ ने कहा तुम अपना खाना खा लो. माँ ने कहा. Mother said, eat your food. तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? Who gave you this right to do so? Who gave you the right to do this?
Who gave you the right to do this? हाँ, और Okay. इस कमरे में बहुत ज्यादा लोग हैं। There are many people in this room. बहुत ज्यादा है अगर, Too many. या एग्जैक्टली तो वहां पर वही जो हम ये अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे, टू मच और टू मेनी में बस इतना ही फर्क है कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल है। अगर आपको एक सेंटेंस कहना है, ये पुस्तक जो है, ये किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। This book was written by Mahatma Gandhi. और अगर आप स्ट्रेट कहें इसको कि ये बुक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, This book wrote Mahatma Gandhi. ना, महात्मा गांधी जी रोट दिस बुक, ये स्ट्रेट हो गया और ये महात्मा पैसिव हो गया। हाँ जी महात्मा गांधी wrote this book. क्या बिल्कुल सिंपल। Yes sir. या फिर महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी तो, This book was written by Mahatma Gandhi. या करेक्ट। और क्या तुम ये काम मेरे साथ करोगे? Will you do this work with me? ठीक है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। Some people never change. ओके। और कुछ दिनों के लिए ट्रेवल करना अच्छा रहता है, कभी कभी घूमने जाना, ये कहना है आपको, कभी कभी घूमने जाना अच्छा रहता है। It's good to travel for some days. चल जाएगा। और इस गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, इस गांव में। There are many trees in this village. ओके। और इस गांव में बहुत सारे पेड़ हैं। हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। We don't have much time. तुमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। You have spent too much. ठीक है, यू हैव स्पेंड टू मच मनी। और हम सुबह जल्दी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, जल्दी पहुंच गए थे। We reached the railway station early in the morning. सुबह पहुंचे जल्दी, अब हमें कहना है समय से पहले पहुंच गए थे। We reached the railway station before the time. बिल्कुल ठीक है। Before हाँ, for the time. और कई बार कह देते हैं इन टाइम। इन टाइम का मतलब भी हो जाता है कि समय के अंदर अंदर कोई काम कर दिया। सो वी रीच द स्टेशन इन टाइम, राइट। In time. और हाँ, ये सुझाव आपकी भलाई के लिए है। This advice is for your benefit. या एग्जैक्टली। और वो जनवरी में अब्रॉड गया। He went to abroad in January. हाँ, बस ये अब्रॉड जो वर्ड है ना, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा बताने का तात्पर्य था कि अब्रॉड वर्ड के साथ हम टू वगैरह कुछ यूज करते ही नहीं है। नॉर्मल कह देते हैं ही वेंट अब्रॉड इन जनवरी। Abroad in January. हाँ, जैसे Okay, sir. मैं विदेश जाना चाहता हूँ तो सिंपल कह देंगे आई वांट टू गो अब्रॉड। I want to go abroad. ठीक हाँ, है. अगर मैं कहूँ वो जनवरी से ही विदेश में है, He has been living in he has been living abroad हाँ, since January. या एग्जैक्टली तो इसमें इन टू अब्रॉड वर्ड के साथ कुछ भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। सो ही हैज बीन अब्रॉड सिंस जनवरी, जनवरी से ही अब्रॉड में है, राइट। सो मुश्किलों के Okay, sir. इसमें living नहीं आएगा. इसमें living नहीं आएगा, sir. Living. He has been living. वो एक्चुअल में टेक्निकली अगर आप यूज करेंगे ही हैज बीन लिविंग अब्रॉड चल जाएगा, इनकी जरूरत नहीं है वैसे। Okay, sir. हाँ, तो अब्रॉड जो वर्ड होता है, तो आपने जब कह दिया ही हैज बीन लिविंग अब्रॉड चल जाएगा, लिविंग इन अब्रॉड नहीं कहेंगे ना। Okay. जैसे टू और इन नहीं यूज करते हैं अब्रॉड वर्ड के साथ। Okay, sir. ही हैज बीन अब्रॉड सिंस जनवरी, यानी वो विदेश में है, बाहर से। मुश्किलों के बावजूद उसने एग्जाम पास कर लिया। Despite the difficulties, he passed the exam. और ये कार खरीदने लायक नहीं है। This car is not worth buying. ठीक है, और ये खरीदने लायक है। This car is worth buying. और ये कार 10 लाख रुपए के लायक तो है। This car cost around 10 lakhs rupees. हाँ, 10 lakh. द प्राइस ऑफ दिस कार इज 10 लाख। लेकिन आपको ये कहना है किसी व्यक्ति को, एक्सप्रेशन है कि 10 लाख में मिल रही है, इस लायक तो है, 10 लाख के लायक तो है। This car worth हाँ, worth 10 दिस 10 कार, lakh. हाँ बिल्कुल, दिस कार इज वर्थ 10 लाख, या फिर दिस कार इज वर्थ पेइंग 10 लाख, यानी 10 लाख के लायक तो है। Okay, sir. क्या ये जगह घूमने लायक है? Is this place worth visiting? विजिटिंग कह दिया, बिल्कुल ठीक है। अगर वो यहाँ होता तो मदद करता, वही मदद करता, हम If नहीं करते उसकी। हाँ,
If he were here, he would help. बिल्कुल ठीक है। अब वर्ब पता है हम ऐसी कंडीशन में कह देते हैं जब हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी यहाँ होता तो मदद कर देता, सो इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प। हाँ, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक नई कार खरीदता, If I were rich, I would buy a new car. और अगर तुमने समय पे पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। If you had studied on time, you would have passed. बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सेंटेंस है, राइट। मान के चलिए कि आपको कहना है कि टीचर ने कहा अपना काम ध्यान से करो। Teacher said, do your work carefully. ओके। और रीना ने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगी। Rina said, I will go to school tomorrow. इसको अपने शब्दों में कह के बताइए। रीना ने कहा कि वो स्कूल जाएगी, इस तरीके से कर देते हैं बस। Rina said that he would go to school tomorrow. हाँ Next day. That she would go to school next day. हाँ चल जाएगा, यानी वही था कि विल का वुड कर दिया बिकॉज पास था, और अपने शब्दों में बता रहे हैं। सो रीना सेड शी वुड गो टू स्कूल टुमारो या फिर द नेक्स्ट डे, दोनों सही है। हाँ, क्या तुमने ये काम खुद से किया है? Did you do this work by yourself? और तुमसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता। No one can do this work better than you. Exactly. That's what I want you to understand. You are very good at speaking English, ma'am. You don't need to get nervous. Speak confidently, and you are a good communicator. You have good confidence and you have good knowledge of English. So, is there anything Sir, else you want to ask me? no, sir. Did I perform well, sir? Yeah, madam. You translated all the sentences correctly. And you just did not translate the sentences. You actually said them naturally the way a native English speaker would say.